बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन MCQs क्वालिफाइंग गाइड बाय परवेज़ इकबाल। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, द मेन पर्पज़ ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द राइट आंसर इज़ ए, एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। सेकेंड नंबर, supervision should be primarily constructive and creative. Number 3, the basic purpose of supervision is to help children learn more effectively. Number 4, elementary school teachers are directly responsible to the headmaster. Number 5th, the criticism mostly frequently leveled at school administration is that they fail to provide leadership. The school headmaster are expected to put into operation the course of study. Number 7, the supervisor is one who provides friendly help. Number 8, the effective supervision is indicated by helping teacher becoming more self-sufficient. Number 9, school policy should be determined by citizen and educator. Number 10, the chief responsibility of the principal is, right answer is B, provide leadership in instructional plan. Number 11, indication of democratic attitude is equal rights, participation, cooperation. Answer is D, all of above. The history of administration goes back to 5000 BC. Answer is C. 13, administration means to look after. Next, 14, the function of educational administration and management is both A and B, instructional task, non-instructional task. 15, option, provision of good educational environment is instructional task. अरेंजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। जो फिज़िकल इन्वायरमेंट की सेटिंग करनी होती है वो नॉन इंस्ट्रक्शनल, और जो टीचिंग के रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करना होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, वो इंस्ट्रक्शनल टास्क। नेक्स्ट, द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 3। कौन कौन सी हैं? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लीजर। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो है इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़र हैं। नेक्स्ट 19 है विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। शेयरिंग उसमें नहीं होती ऑटोक्रेटिक के अंदर, शेयरिंग डेमोक्रेटिक के अंदर होती है, बाकी 3 ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। रूडनेस, सप्रेसिंग द सबॉर्डिनेट्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये 3 होते हैं। ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन dictatorship. Democratic administration is based on mutual sharing. Laissez-faire administration is based on non-interference. Laissez-faire के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो लेजी होता है, वो चाहता है जो करती रहे उसके सबॉर्डिनेट्स, वो कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं करता। नेक्स्ट है बॉस इज़ ऑलवेज राइट, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, बॉस इज़ राइट, ये होता है ऑटोक्रेटिक के अंदर के बॉस का कहा माना जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, आमरीत का निज़ाम होता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ, ये डेमोक्रेटिक है जहाँ पे बामी मुशावरत से एक दूसरे की राय दही से काम किया जाता है। नेक्स्ट है 25, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन लेज़र-फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। लेटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज़ सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। नेक्स्ट है सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली इज़ द सेइंग ऑफ Hoy and Forster. Next है who said supervision is the set of services and processes for teacher development to attain goals of schools. Galathorn. Next है in teaching learning process supervision is usually carried out by principal. Assessment 30, assessment of how well a school is performing is inspection. According to fuel, elements of administrations are, right answer 5, B option. According to Gulick and Arvik, elements of administrations are 7. Next है
In Post Corp, co stand for coordination. Number 34, to make arrangements is the part of organization. Number 35 है education of plans and decision is the part of commanding. Next है to bring harmony among all the elements of program. Right answer is coordinating. Next, school budget includes, right answer C है, बजट के अंदर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल के अंदर जो बिल्डिंग के एलिमेंट होते हैं तामीराती, और नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स में सैलरीज वगैरह शामिल होती हैं। इसके बाद है BM स्टैंड फॉर बजट मैनुअल। नेक्स्ट है नॉन डेवलपमेंटल बजट इंक्लूड्स सैलरीज, रनिंग एक्सपेंडिचर्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, न्यू लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज etc आर constructed under developmental budget. Next है 41, leadership is the ability to influence, to motivate, to achieve organizational goals. Answer is fourth one D, all above. 42, all development means training staff. Staff development means training staff. 43, selecting one course of action among various alternative is decision making. मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इंतखाब करना, ये डिसीजन मेकिंग है, फैसला लेने की हुआ। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? वो हैं फ्रेडरिक टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बानी। हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी? हेनरी फ्योल। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ये हेनरी फ्योल हैं। ऑल गवर्नमेंट grants and expenditures are maintained in cash register. In case of GPF advance GP fund, the number of installment for refunding is 24 installments of them. Developing alternative is step of planning. Developing alternative is step of planning. Next है how funds in a given period will be obtained and spent is budget. फंड्स किस तरह से हासिल किए जाते हैं, उनको खर्च कैसे करना, तो ये बजट कहलाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट है ACR मीन्स एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो कि 3 मंथ से कम नहीं लिखी जाती। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सुपरविजन, इनकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज क्रिएटिव। Who advocated bureaucratic theory? Max Weber ने दी थी। Directing must be consistent with all of above. Organizational policies, procedures, job descriptions. Answer is all of above. In case of new recruitment, the probation period is 3 years. जो पहला आजमाइशी दौरानिया होता है वो 3 साल का होता है, इसके बाद परमानेंट कर दिया जाता है एक एम्प्लॉय को। The power delegated throughout an organization is decentralization होती है, जो ऊपर से नीचे तक तकसीम की जाती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो एक सिर्फ मरकज़ी क़ुव्वत होती है वो सेंट्रलाइजेशन होती है कि ऊपर से एक ही आर्डर फॉलो किया जाता है। वो सेंट्रलाइजेशन जो मुख्तलिफ मकामात पे डिवीज़न उसकी होती है, हर तरफ से इस्तेमाल हो रही होती है ऊपर से नीचे तक, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़ हेनरी फ्योल। नेक्स्ट हमारे पास 57 है द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ सिस्टम आर कंपोनेंट। नेक्स्ट है विच पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट who retires at the age of 60, superannuation. Next 59 है all financial transaction of school occur from day to day is entered in cash book. Next है the process of directing others towards the accomplishment of some objective is managing. Micro planning is done in middle and lower management. ACR cannot be initiated for the period of less than 3 months. 63 है the individual in the group given the task directing and coordinating is supervisor. A choice made between 2 or more alternatives is called decision. Next हमारे पास है
65. Cash book is maintained by DDO, Drawing and Disbursing Authority. Number 66 है authoritarian model is more suitable for discipline. टीचर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इसलिए डिसिप्लिन होता है. टीचर्स सैलरीज एंड अलाउंसेज कलेक्टिवली आर रिटर्न इन. ये कैश रजिस्टर गलत है तो यहाँ पे आएगा एक्वेंटेस रोल. बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल इज़ लीडिंग. दूसरों को मोटिवेट करना टारगेट को अचीव करने के लिए ये लीडिंग कहलाता है. ए प्रोग्राम ऑफ activities which is designed to attain educational end is curriculum. Next है superannuation retirement age in Pakistan is 60 years. Option C, right answer. Pension is given if the retirement is after service of 25 years. 72 है person who possesses qualities of leadership is a leader. 73 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड एवेलुएशन. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर ऑल ऑफ दैम. कौन से हैं? ऑप्टिमिस्टिक होता है, मोटिवेटर होता है, प्रोड्यूसर होता है. तो ये सारे इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड प्लानर की. नेक्स्ट है व्हाट डज ई एंड डी रूल्स स्टैंड मीन एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स. E for efficiency, D for discipline rules. Next है ADP is an abbreviation of Annual Development Program. ADP. Next है education in Pakistan is the responsibility of which government under devolution of power? District government. The power is concentrated in the hands of one or few पीपल इज़ सेंट्रलाइजेशन. अगर पावर जो है एक हाथ में हो, सेंट्रल जो पॉइंट पे हो, तो वो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. कि एक बंदा बैठकर सारे निज़ाम को कंट्रोल करे तो वो सेंट्रलाइजेशन होती है. अगर उसकी डिवीजन कर दी जाए तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन होती है. व्हाट इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन? डिसीजन मेकिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेंट्रल पॉइंट पे है. इन पोस्ट डायर आर स्टैंड्स फॉर reporting. SNE is an abbreviation of schedule of new entries. यहाँ पे कन्फ्यूजन है. मोस्टली जो तहकीक के बाद आया है वो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर है. जो सर अरशद तारिक साहब की बुक है उन्होंने भी ये लिखा है कि शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन काफ़ी जगह पे शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्रीज भी दिया हुआ है. लेकिन राइट आंसर जो है वो सी है, शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर. इसके बाद है टीचर इज़ कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड एज चेंज एजेंट. नंबर 83 है द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू लर्निंग आउटकम्स. अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना हो किस लेवल की काम कर रही है तो उसकी लर्निंग देखी जाती है कि उस अदारे के अंदर कितनी लर्निंग हो रही है, उसकी आउटकम देखा जाता है, उसका आउटकम चेक होगा. नेक्स्ट है एक्वेंटेस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिसबर्समेंट. यहाँ पे राइट आंसर आया है ए. नेक्स्ट है द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज़ एफिशिएंसी. डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज़ एफिशिएंसी. ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी इंटर्ड इन विच रजिस्टर? कैश. 87 coordinating, stimulating and directing the growth of teacher is the purpose of inspection. Next है coordinating, stimulating and directing the growth of teacher is the purpose of inspection. Next है the concept of inspection was first introduced in England. Budgeting is an estimation of income and expenditure. Next हमारे पास है 90 the authorized person of staff performance is head teacher. An element of fear and anxiety is found in inspection के अंदर खौफ और हिरास पाया जाता है. जब भी कोई मुआयना होता है बंदे परेशान हो जाते हैं. नेक्स्ट expenses of newspapers, coal, ice, stationery written in contingent register.
इन लेजर लीडरशिप द लीडर अवॉइड द ग्रुप। नेक्स्ट है MIS इज एब्रीवेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नंबर 95 है द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ए स्कूल डिपेंड्स ऑन सूटेबल टाइम टेबल। 96 है सेलेक्टिंग पीपल टू मीट नीड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इज स्टाफिंग, सेलेक्टिंग पीपल क्या आएगा, स्टाफिंग होता है। नेक्स्ट है स्टॉक रजिस्टर इज़ यूज फॉर राइटिंग स्टॉक, ऑल टाइप ऑफ स्टॉक है ABC। परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, कवर्ट ग्रांट, परचेज फ्रॉम कंटीजेंट ग्रांट, परचेज फ्रॉम डोनेशन, ऑल अबव राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉरिस्पॉन्डेंस रजिस्टर इज़ यूज्ड डिस्पैचिंग मेल, रिसीविंग मेल। इनका राइट आंसर है C है, बोथ A and B। प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज, तो ये 72 की पॉलिसी है भुट्टो की, इसको पेश किया था अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने। नेक्स्ट है इन विच रजिस्टर रिमार्क्स आर रिटन व्हेन अ स्टूडेंट इज़ commended for a special merit or report or punished for misbehavior, तो ये है कंडक्ट रजिस्टर। The determination of human and material resources for successful management is planning. Inspection officers of education department pen down the particular merits, demerits and views in logbook में जो भी ऑफिसर आता है वो लिख के जाता है। Wastage of resources, time and work is prevented in administration by the function of budgeting. पैसे का जो है ज़िया हम इस तरह से बचा सकते हैं कि बजटिंग के ज़रिए से किस तरह से हमारी इनकम है और किस तरह से हमारे अखराजात हैं उनका तखमीना या हिसाब किताब करना बजटिंग कहलाता है। इससे हम सेविंग कर सकते हैं। विच रजिस्टर इज़ यूज टू कन्वे द ऑर्डर टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गव टू एम्प्लॉय, ऑर्डर बुक यूज़ होती है जो हेड इस्तेमाल करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। फॉर हाउ मैनी कंसिक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ गर्ल शैल बी स्ट्रक ऑफ रोल, कितने दिनों बाद जो लगातार छुट्टियां करने से लड़की का नाम कटना चाहिए, स्ट्रक ऑफ होना चाहिए, तो 10 डेज है। हाउ मैनी कंसिक्यूटिव डेज फॉर स्टूडेंट बॉयज़ स्टूडेंट, तो लड़के का नाम कितने दिनों बाद अगर वो छुट्टियां करता है लगातार तो 6, राइट आंसर है A, 6 दिनों बाद उसका नाम स्ट्रक ऑफ होना चाहिए। नेक्स्ट है 107 107 व्हेन इज स्टॉक एनुअली चेक्ड आर फिजिकली, तो ये है 13 जून, 30 जून को जो है पहला स्टॉक जो है एनुअली जो हिसाब किताब होता है। इसके बाद 1 जुलाई से नया साल जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। हाउ मच कंसेशन इज़ फी इज़ एडमिसिबल ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ ए स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूशंस, तो हाफ अगर 2 बहन भाई हैं तो आधी फीस उनकी माफ़ होती है। व्हाट इज़ द माइनर पेनल्टी अंडर E&D रूल, तो वो है ये इन्होंने आल का लिखा है तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है सेंश्योर हैं। ये सारी की सारी जो है माइनर पेनल्टीज़ हैं, लेकिन इन सब के अंदर जो सबसे लाइट है वो सेंश्योर, इसका मतलब है लानत मलामत करना, तान और तशनी करना। व्हाट इज़ द मेजर पेनल्टी अंडर E&D रूल, तो ये सारी मेजर पेनल्टीज़ हैं। रिड्यूसिंग टू लोअर ग्रेड है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, कैजुअल लीव्स पर एनम आर 25 हैं, कैजुअल लीव रुखसत इत्तफाक़िया 25 हैं। मैक्सिमम लीव्स सैंक्शनड एट अ टाइम अंडर द सर्कमस्टांसेस आर 10, आम सूरत हाल के अंदर 10 छुट्टियाँ जो हैं वो ले सकते हैं। मैक्सिमम कैजुअल लीव्स सैंक्शनड अंडर अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ख़ास हालात के अंदर अगर कोई मजबूरी हो तो फिर 15 छुट्टियाँ एट अ टाइम लेंगे, तो जिसको DC जो है वो रेकमेंड करेगा। नेक्स्ट है अर्न लीव दैट ए सिविल सर्वेंट इन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ 1 है। अर्न लीव जो हैं 27 काकिया वो 1 महीने के अंदर, एक टोटल साल के अंदर जो है वो 12 होती हैं। अर्न लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट कैन अवेल पर मंथ 4 है, लेकिन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट वाला 4 छुट्टियाँ कर सकता है और 48 छुट्टियाँ इसकी एक साल में होती हैं। हु बिलोंग्स टू वेकेशन डिपार्टमेंट, टीचर वेकेशन डिपार्टमेंट से द अर्न अकाउंट ऑफ गजटेड सर्वेंट इज़ मेंटेन्ड बाई डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर। अर्न लीव ऑफ नॉन गजटेड ऑफिसर मेंटेन्ड बाई सर्विस बुक।
जो सर्विस बुक है उस पर उसका इंदराज किया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव्स ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 120 days. The maximum period of leaves on full pay that can be granted with one time with medical 180 days है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 121 लीव्स दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज, वो मेडिकल लीव्स को इनकार नहीं किया जा सकता। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव्स विदाउट पे इज़ 5 years। नेक्स्ट मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी, तो वो 365 दिन की छुट्टियां हैं। द सैलरी इज़ गिवन एज लीव इनकैशमेंट फॉर 180 days। जब रिटायरमेंट काफ़ी साल होता है उसको काउंट किया जाता है, अगर वो छुट्टियां ना लेना चाहे तो उसके बाद उसको सैलरी मिलती है, तो 180 days की वो उसकी काउंटिंग होती है। द कंडीशन फॉर लीव इनकैशमेंट इज़ कंप्लीट 30 years ऑफ सर्विस, सरेंडर LPR, बहुत राइट आंसर है। द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव इज़ 90 days है, 90 दिन की छुट्टी होती है जब औरत को बच्चा होने वाला होता है या बच्ची पैदाइश के दौरान, तो अगर टीचर फीमेल तो उसको फिर छुट्टियां होती हैं 90 दिन की मैटरनिटी लीव को। अब तो पैटर्निटी लीव भी आ गई हैं, 1 हफ्ते के लिए बाप को भी छुट्टी मिलती है। मैटरनिटी लीव्स कैन बी अवेल्ड बाई लेडीज़ इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट 3 times, और वेकेशन डिपार्टमेंट में जितना चाहे वो ले सकती है। हाउ मैनी टाइम्स मैटरनिटी लीव्स कैन बी अवेल्ड फीमेल इन वेकेशन डिपार्टमेंट ऑल द टाइम्स व्हेन नीडेड, जब चाहे वो ले सकती छुट्टियाँ। द पीरियड ऑफ स्टडी लीव्स फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट 3 years। द बजट इन विच ग्रांट फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन और डिमांडेड इज डेवलपमेंट बजट, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए डेवलपमेंट बजट होता है। द बजट इन विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज़ आर ग्रांटेड या डिमांडेड, तो वो होता है नॉन डेवलपमेंट बजट, जो सैलरीज के लिए यूज़ होता है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्कूल इज़ फंड्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन, सभी हैं ऑल ऑफ अबव। फंड्स ऑफ स्कूल्स आर रिसीव्ड फ्राम, तो स्टूडेंट से हासिल किए जाते हैं, बच्चे फंड देते हैं 20 रुपये फ़ीस, इसको हम FTF कहते हैं, फ़रोग़ तलीम फ़ंड। यूज़ ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्राम स्टूडेंट इज़ स्पेंट ऑन स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, बच्चों पर खर्च होते हैं या स्कूल पर। ट्यूशन फ़ीस इज़ रिसीव्ड फ्राम नॉन ऑफ अबव, किससे भी ट्यूशन फ़ीस नहीं ली जाती। द शेयरिंग ऑफ साइंस फंड इन यूनियन फंड एट एलिमेंट्री लेवल इज़ 25%। Money received and disbursed is entered in cash flow. The least distance for which traveling money received and disbursed in is in cash book. नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस फॉर विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर होगा, तो तब जो है आप ये ट्रैवलिंग अलाउंस अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद effective use of sources, effective educational environment, achievement of educational objective, तो all of above आएगा। 140 है which one is not the basic element of management, काउंसलिंग इसमें नहीं है, प्लानिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी होती है, लीडिंग भी होती है। नेक्स्ट जो है 141 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी इज ऑल अबव, ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिव पीपल्स, सेम गोल, सेम कल्चर, ट्रेडिशन एंड टेरिटरी। नेक्स्ट है हु मैनेज द एलिमेंट्री स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वो कौन करता है, DO होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वर एस्टेब्लिश्ड ऑन 1994, 1994 के अंदर बनी थी। द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़, ये सारे इसके फंक्शन है। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज टू सॉल्व प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, टू डेवलप रिपोर्ट बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स, तो ऑल अबव आएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाज रीनेम्ड, दोबारा इसको स्कूल काउंसिल का नाम दिया गया, ये 2000 के अंदर, 2000 के अंदर स्कूल काउंसिल का नाम दिया गया। नेक्स्ट है द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन एलिमेंट्री स्कूल इज
0.60 square meter. Next है space required for classroom in secondary school is 1 square meter. Next है biggest library in Pakistan is Punjab Public Library Lahore. Determination of human and material resources for successful management is planning. The element that regulate the management activities is controlling. Element that regulate the management activities is controlling. Next, the process undertaken to control the activities others to achieve the results is known as management. सूरत हाल को कंट्रोल करना और निज़ाम को चलाना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्लानिंग। सबसे पहला जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्लानिंग सबसे पहले है। प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली गेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड विद एंड थ्रू अदर पीपल इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तमाम सरगर्मियाँ करवाना लोगों का इस्तेमाल करते हुए क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। द लास्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज़ टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। इफ़ द मैनेजर इज़ डूइंग द एवेलुएशन ऑफ ए प्रोजेक्ट ही शी इज़ एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है व्हेन अ न्यू प्रोग्राम इज स्टार्टेड द मैनेजमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज टू डिवेल्प सोशल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स आर स्काउटिंग। सोशल वैल्यूज़ स्टूडेंट के अंदर डिवेल्प करने के लिए कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं? तो वो स्काउटिंग का इस्तेमाल। स्काउटिंग। चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज़ हेड टीचर होता है वो। नेक्स्ट है द स्पेशल डेली अलाउंस ऑफ एन ऑफिसर VPS 19 इज़ 825 825 रुपये। वो स्पेशल डेली अलाउंस मिलता है VPS 19 स्केल को के ऑफिसर को। द मैक्सिमम लिमिट फॉर मैटरनिटी लीव इज़ 90 days. First statement of access and surrender is sent to department in month of November. Next है the service book is maintained for the civil servant of grade 1 to 15. 15 स्केल तक होती है सर्विस बुक यूज़ होती है। कैश बुक should be written daily. Timetable of a school depends upon school working hours. School working hours. Next, a marriage grant can't be received by government servant or other marriage of the daughter within 90 days after marriage. Marriage grant can be received by government servant or the marriage of the daughter within 90 days after marriage. शादी के 90 दिन के अंदर अंदर वो ग्रांट मिल जानी चाहिए, हासिल की जाती है। नेक्स्ट है student study leave is granted to a government servant after continuous service of 5 years. Next all entries in cash books are initiated by DDO, Drawing and Disbursing Authority, Drawing and Disbursing Officer. Next layoff of an employee means compulsory retirement, जबरी रिटायर किया जाता है। Job specification means a description of the job. Generally, a primary school timing is 5 to 6 hours. After devolution, the post created to control education is district level is EDO, जो कि अब CO है, पहले ये EDO था। Spark plug of the school is, अब इसको DEA भी कहते हैं। Spark plug of school is timetable. In 1964, Luntz and Donnell divided management into 5 parts as POSDEC, POSDC, POSDEC। 1964 के अंदर लंट्ज और डॉनेल ने डिवाइड किया था मैनेजमेंट को 5 हिस्सों के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर एडमिनिस्ट्रेशन पर।
और मैनेजमेंट पर, जो इसके बीएड और एमएड का सब्जेक्ट है और एम एजुकेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज़ अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।